Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Yahya and I am your Islamiyat teacher. Welcome to class 5 lecture number 1. The book that we will be following for this course is Islamiyat for primary classes by Sajida Zaidi. So we will be doing our first chapter, that is Allah, and we will be learning about our beliefs that we have for Allah in this chapter. So I ask you to open your book Islamiyat for primary classes second edition and open the first chapter Allah. So we will be reading it and I will be explaining it after reading. So Muslim is the one who believe in Allah. As Muslims, we believe that Allah is our creator, our Lord and Master. That is, Allah created us and He provides sustenance for us and He looks after all our affairs. He alone is all powerful, all merciful. That is, all the power belongs to Him, and He is the most merciful that exists. That is, no one else can be more merciful than Allah. He has given us our life, our family, our home and all other blessings. That is, all we have, everything that we possess today is given to us by Allah. He made everything in this world for us. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी कुछ बनाया है वो इंसानों के लिए बनाया है ताकि इंसान उससे फ़ायदा उठा सके. Everything we have is given to us by Him. We are His creatures and His servants. That is, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं और हम अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं. हम वही करते हैं जो अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं और जो अल्लाह ताला को पसंद है. Our first duty to Allah is to worship Him alone. हमारी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को खुदा माने. ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है. We must have complete faith in the first कलमा. पहला कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. That is, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. We must also have complete faith in Allah's angels, His books, His prophets and in the day of judgment. That is, वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के काम पूरे करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं, हमें उन पर ईमान लाना है. अल्लाह ताला की वो किताब जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ पैगंबर पर नाजिल फरमाई है, मुख्तलिफ़ प्रॉफिट्स पर नाजिल फरमाई है, हमें उन पर ईमान लाना है. और मुख्तलिफ़ प्रॉफिट्स जिन्हें अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा, हमें उन पर भी ईमान लाना है. और आखिरत के दिन पर ईमान लाना है, जिस दिन हिसाब व किताब होगा, जिस दिन हम जज किए जाएंगे. We must remember that we have been created for a reason. We will be judged for everything we do in this world. That is, अल्लाह ताला का हमें बनाने का मकसद ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ ऐसे ही बना दिया. अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो इसका मकसद है, और वो मकसद क्या है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें. और हम इस दुनिया में जो भी कुछ करेंगे, हम आखिरत में उसे जज किया जाएगा और उसका हिसाब किताब देना होगा. That is, that how we behave with our parents, how we behave with our teachers, how we behave with each other, how we spend our money, how we spend our time, how we do things, we will be judged for all of it. In return for all His blessings for us, it is our duty to submit ourselves completely to Him and obey Him. दैट इज़ कि हम अल्लाह ताला की जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी है, इतने अच्छे अच्छे खाने और पहनने के लिए कपड़े और इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवाएं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें जो कुछ दिया है, जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं हमें उनके बदले में क्या करना चाहिए? हमें उनके बदले में अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पर अमल करना चाहिए. We must pray 5 times a day, fast in the month of Ramadan and give zakat on our wealth.
अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, हमें वो रोज़ाना पढ़नी चाहिए। और अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, वो रखने ज़रूरी हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे जो माल है, हमारे जो पैसे हैं, उसमें से ज़कात अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, उन पैसों में से वो ज़कात जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है वो अदा करनी चाहिए। We must also promote what is right and stop what is wrong and do everything that pleases Allah. That is, if we see anything evil, we should prevent it, and we should order others to do good things. So, कि अच्छी बात का हुक्म देना चाहिए और बुरी बात से दूसरों को रोकना चाहिए, और सिर्फ वो काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद है। We must also promote what is right and stop what is wrong and do everything that pleases Allah. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought Allah's messages and guidance to us through the Holy Quran. That is कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हिदायत और अहकामात नाजिल फरमाए हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास लेकर आए कुरान के ज़रिए से, हॉली कुरान के ज़रिए से। गाइडेंस टू व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, वो हिदायत जो उस चीज़ की हिदायत कि जो चीज़ ठीक है और जो चीज़ गलत है वो हमें कुरान में बता दिया गया है। गाइडेंस टू व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ गिवन टू अस इन द होली कुरान। वी मस्ट लर्न टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट। हमें कुरान को पढ़ना सीखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और उसे समझना चाहिए। It is our duty not only to obey Allah but also to thank Him. हमारा ये काम नहीं है कि हम सिर्फ अल्लाह की बात माने, बल्कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी रहें। एक ऐसे अल्लाह जिन्होंने हमें इतना सब कुछ अता किया, हमें इतनी नेमतें दी, तो क्या हम उनका शुक्र अदा नहीं करेंगे? जिस तरह कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो हम वो दूसरों के लिए भी हम पसंद करते हैं कि अपने घर वालों को भी वो दें। तो इसी तरह हमें अल्लाह ताला का जो मैसेज है वो भी प्रोपेगेट करना चाहिए, वो भी फैलाना चाहिए। The best way to do this is to try and spread His message and all the good things we have learned about Allah to those who do not know about Him. जैसा कि अभी बताया कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं जिनकी हम केयर करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला का मैसेज भी इतना अच्छा है, अल्लाह ताला ने जो हमें तालीमात दी हैं वो इतनी अच्छी हैं, तो वो भी हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। It is not enough just to obey and thank Allah. We must also love Him from the bottom of our hearts because He loves us more than anyone ever can. सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बात माने और उनके शुक्रगुजार हैं, बल्कि हमें उनसे मोहब्बत भी होनी चाहिए। जिस तरह हमें अपने वालिदैन से भी मोहब्बत होती है, क्योंकि वालिदैन हमारे लिए इतने अच्छे होते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो बदले में हम उनकी बात भी मानते हैं, उनके शुक्रगुजार भी रहते हैं और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। इसी तरह हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनते रहें और अल्लाह ताला से प्यार भी करें। He loves us more than anyone ever can. Allah is the most loving and most merciful. So now we have this topic, the names of Allah. We will discuss this in our next lecture. तो जो आपको पढ़ाया गया है इस टॉपिक में, आप उसको बुक से भी रीड करें और समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम जो ये टॉपिक है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि जो चैप्टर है इसका आपने टाइटल पेज बनाना है, और ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह का मतलब कि अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में अल्लाह ताला आपका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।